Hello everyone, I am Deepika and you all are welcome in my channel Language Learners. So, today we are going to learn or read or understand a chapter from Looking Around textbook for class 3 NCERT. So, second chapter we are going to read and understand today. So let's start. It is all about the plant fairy. Yes. So last Sunday we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek, chupan chupai and antakshari. So what is there in the chapter that last Sunday we went to a place only, no, neighborhood place. Neighborhood means जो आपके घर के आसपास की जो जगह होती है उसे neighborhood कहते हैं. And sorry, so what they played hide and seek. Hide and seek को हम हिंदी में क्या कहते हैं? छुपन छुपाई, छुपा छुपी, लुका छुपी, ये सब अलग अलग नेम होते हैं ना, वो है hide and seek. And what another game they played? अंताक्षरी. अंताक्षरी यानी सा रे गा मा प ध नी सा, स से चलो गाओ, कैसे गाते हैं, है ना, वो अंताक्षरी है. सो दे प्लेड. हु प्लेड वो हम आगे पढ़ेंगे. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. सो ये पता चल रहा है कि अगर कुछ लोग गेम खेल रहे हैं तो गेम कौन खेलने वाला है? छोटे बच्चे, चिल्ड्रन, राइट. एंड हु इज द एल्डर पर्सन विद देम? उनके साथ बड़ा कौन है? बड़ा है दीदी. सो दीदी ने क्या बोला कि छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी तो हम रोज खेलते हैं, आज टुडे वी विल प्ले अ न्यू गेम. सो ऑल वर रेडी. यस, वी आर गोइंग टू प्ले अ न्यू गेम. वी had played this game in the camp last year. I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. Plant fairy मैं बनूंगी. I will be the plant fairy and you all have to touch a thing. ऐसी चीज़ों को टच करना है जिसका मैं नाम लूंगी. Okay? The game began. Didi said, The plant fairy asks you to touch a plant. यानी जितने भी बच्चे थे वो सब दे स्टार्ट रनिंग और उन्होंने फटाफट पेड़ पौधों उसको क्या कर लिया? टच कर लिया. देखो मैंने भी लीव्स को टच कर लिया. वैसे अभी what happened? At once all the children ran towards the plant. सब भाग के किसको टच करने लगे? प्लांट्स और ट्रीज को. So let us meet the first character, Amu. What did he touch? Amu held the marigold plant. Marigold plant को उसने टच किया. Then Shabnam, the second character, said touching a jasmine plant. Shabnam ने किसको टच किया था? Jasmine plant को. And the Dayaram caught hold of a neem tree and stood there. दयाराम ने क्या किया? उसने नीम ट्री को पकड़ के उसको गले लगा के वो वहीं पे खड़ा रहा. माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश. माइकल ने क्या किया? मेहंदी बुश यानी जो मेहंदी का छोटा सा पौधा पेड़ था उसको उसने टच किया. दीदी said, now what Didi said? Oh my dear children, you did a great job. Very good. सबने प्लांट्स को टच कर लिया. Very good. A great job you all did. Now everyone has touched a plant, but have you noticed that all the plants are different from each other? अभी सबने टच किया था. Let me tell you again that how many children were there? How many children are there? 4 characters. First is Amu, Shabnam, Dayaram and Michael. 4 children and one was Didi with them. So they all were playing a new game today in the park, in the garden. And now what they did, what they have to notice that कि उन्होंने जिस भी प्लांट को टच किया था वो सब अलग अलग थे. अभी हम याद करते हैं कि एमू ने कौन सा प्लांट टच किया था? मैरीगोल्ड. शबनम टच्ड कौन सा प्लांट टच किया था उसने? याद नहीं आ रहा. Yes, jasmine plant. And third was दयाराम. दयाराम ने क्या किया था? He has hugged a neem tree. उसने नीम ट्री के ट्रंक को, जो उसका ट्रंक होता है, उसको ऐसे हग करके वो वहाँ खड़ा था. And Michael touched the मेहंदी bushes. जो मेहंदी के छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको टच किया था. Right? Now
दीदी you are also sitting on little plants, said शबनम. शबनम ने क्या कहा कि दीदी आप भी एक प्लांट के ऊपर बैठे हो. तो दीदी जो प्लांट के ऊपर बैठे थे वो कौन सा प्लांट था? इट वॉज अ ग्रास. हम लोग नीचे बैठते तो नीचे ग्रास ही होता है ना, हम मैंगो ट्री के ऊपर जाके तो बैठने वाले हैं नहीं. सो दीदी वॉज सिटिंग ऑन अ ग्रास. नाउ द गेम स्टार्टेड अगेन. अभी सेकेंड राउंड. द प्लांट फेरी नाउ सेड touch a tree which has either a thick or a thin trunk. अभी उन लोगों को क्या करना है? They have to touch a big tree which has a thick or a thin trunk. Trunk यानी जिसके जो ब्राउन कलर का शेप होता है, जिसके ऊपर पेड़ पूरा खड़ा रहता है, उसे कहते हैं ट्रंक. तो वो ट्रंक को टच करना है, लेकिन वो ट्रंक ऐसे ट्री को टच करना है जिसके ट्रंक हो. और वो ट्रंक कैसा होना चाहिए? या तो मोटा होना चाहिए या तो पतला होना चाहिए, थिक या फिर थिन. So this is opposite words, thick and thin, mota patla. So now they have to touch the trees. Now let's see what they did. The children ran again to touch the trees with thick or thin trunks. Have you seen a tree with the trunk as thick as the one shown in the picture? See, in the picture it is shown one is thick and one is thin. तो क्या आप लोगों ने इतने मोटे ट्रंक वाले ट्रीज को देखा है? यस, आपने देखा ही होगा, क्योंकि हमारे सबके सराउंडिंग में पेड़ पौधे होते हैं और हम उन्हें रोज देखते हैं. बस फर्क क्या है? दैट वी डू नॉट ऑब्जर्व देम. हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते, सिर्फ देख के चले जाते हैं. तो हमें क्या करना है? उनको ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व मीन्स टू लुक केयरफुल. ओके. नाउ माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगी. ही थॉट, उसने सोचा, हाउ लकी द फेरी वॉज. फेरी जो फेरी थी, शी वॉज हाउ मच लकी, वो कितनी लकी थी. शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड, वो सबको ऑर्डर देती थी. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, सेड माइकल. माइकल ने क्या बोला सबको? दीदी दीदी, नाउ आई वॉन्ट टू बिकम द प्लांट फेरी. द चिल्ड्रन लाफ्ड. एक लड़का और फेरी, तो क्या नाम होगा? अ बॉय फेरी. They were now ready to take orders from the new plant fairy, that was Michael. Michael said, "Get me some leaves quickly." Sorry. What Michael said? Get me some leaves quickly. Quickly means फटाफट मुझे कुछ पत्ते दो. But wait. But remember, you are not to pluck the leaves from the plants. आपको प्लांट्स के पत्ते नहीं तोड़ने हैं. यू डोंट हैव टू प्लग दी लीव्स. सेड दीदी. माइकल ने नहीं बोला. हु सेड? दीदी सेड. द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड. तो बच्चों ने क्या किया? जितने भी पत्ते नीचे ग्राउंड में थे उन सबको कलेक्ट कर लिया. सो आप लोगों ने लीव्स कलेक्ट की है कभी? हैव यू डन दिस एक्टिविटी इन योर classes, to collect the leaves and then paste it in your notebook, or to color it and then do the drawing activity or anything? कभी ऐसा आपने किया है? Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaf. Dayaram was very much amazed. वो बहुत ही आश्चर्य में था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे टाइप्स के लीव्स होते हैं. Look, some are round, some are long and some are triangular. दीदी ने क्या बोला? See, देखो, ऑल द लीव्स, सब लीव्स के शेप्स जो है वो अलग अलग है. कोई राउंड है तो कोई ट्रायंगुलर है, तो कोई कैसे है? ओवल शेप में है. सब अलग अलग है. एमू सेड, दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल. सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन. सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल. देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेस ऑन इट. एमू ने क्या बोला? यस, शेप तो डिफरेंट है, दे आर हैविंग डिफरेंट शेप्स, बट शेप्स के साथ दे आर ऑल्सो हैव डिफरेंट कलर्स. कोई डार्क ग्रीन है, सो अनदर इज लाइट ग्रीन, एंड इन दैट सम आर रेड, सम आर पर्पल, सम आर येलो, एंड वन इज ग्रीन बट इट हैव वाइट पैचेस ऑन इट. यानी एक पॉइंट हमें ये नोट करना है इस वक्त, दैट ऑल द ट्रीज आर यूनिक. कोई भी ट्री सेम टू सेम नहीं है. जैसे वी ऑल आर यूनिक. आई एम दीपिका, मैं अलग हूँ, मेरे जैसा इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं है.
नाम हो सकता है, बट आई एम यूनिक इन द सेम मैनर। ये सेम पैटर्न में ट्रीज जो है वो यूनिक होते हैं, उनका ट्रंक अलग होता है, उनकी लीव्स की पैटर्न अलग होती है, उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, ये सब कुछ अलग होता है। लुक, even the margins of these leaves are different from each other. Some have straight margins and some uneven. Some of these margins even look like a saw, said Shabnam. Yes, सबके मार्जिन साइज सब कुछ अलग है। कोई ऐसे मोटा है तो कोई एकदम पतला है, कोई मोटा पतला पूरा है, दुबला मोटा होकर पूरा गोल बन रहा है। Amu and Shabnam shouted together, we also want to be the plant fairy. माइकल का टर्न हो गया, अब हमारी बारी। Didi said, not today, not today. Maybe next Sunday. It is time to go home now. On the way back, Didi recited a poem for everyone. This is on page number 13, जहाँ पे दीदी ने एक पोएम रिसाइट की है, जो किसने लिखी है? विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखी है, एंड इट वॉज इन हिंदी एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। ये पोएम ओरिजिनली हिंदी में थी और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। सो नाउ इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज वी विल ऑल्सो सी मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स। हम अलग अलग पत्तों को देखेंगे कि वो पत्ते कौन से पेड़ के हैं और वो पेड़ का नाम क्या है, उसमें क्या होता है। एंड चिल्ड्रन, यू नो ऑल द प्लांट्स या ट्रीज जो भी है, प्लांट्स एंड ट्रीज, देयर आर टू टर्म्स, राइट? तो ये दोनों टर्म अलग चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड दिस I will surely going to make the video for this topic also, but later on. So let us go and meet some different leaves. Now we will see some different leaves of different plants and trees. So let's start with the first tree, the leaves which is the national tree of India. So dear children, do you know which is the national tree of India? See, these leaves are of banyan tree. Banyan tree is the national tree of India. Can you see? See, these leaves are of banyan tree. They are very soft on the top. The layer is very soft. Now, let's go for the another tree. See, these leaves. Can you see the leaves? Have you seen nearby a temple these kind of leaves, a tree of these kind of leaves? Yes, it is. These leaves are of peepal tree. Peepal tree is the holy tree and we do पूजा। हम इस पेड़ के पास जाके इस पेड़ की पूजा करते हैं। ये पीपल के पत्ते हैं, पीपल का जो पेड़ है ये उसके पत्ते हैं। ओके, सो देखो उनका शेप, और बनियन ट्री, सी द शेप्स, आप शेप देख सकते हो, एंड सी द कलर, दिस इज़ ऑफ डार्क ग्रीन कलर एंड दिस इज़ ऑफ लाइट ग्रीन कलर। इनके कलर में भी डिफरेंट है, उनके शेप में भी डिफरेंट है, एंड द टेक्सचर, जो ऊपर का जो टेक्सचर है वो भी डिफरेंट है। बनियन ट्री का बहुत ही सॉफ्ट है एंड पीपल ट्री का इतना सॉफ्ट नहीं है। सो डियर चिल्ड्रन, इससे हमें क्या पता चलता है? व्हाट वी लर्न दैट ईच एंड एवरी ट्री, हर एक पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग, उनका शेप, उनका टेक्सचर और उनका कलर वो अलग अलग होता है। नाउ वी विल सी सम मेडिसिनल प्लांट्स। अभी हम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स देखेंगे। मेडिसिनल प्लांट्स मीन्स जो प्लांट के पत्ते हम लोग एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। सो लेट मी शो यू दिस। नाउ व्हाट इज़ दिस? ये छोटा सा जो प्लांट है, जो मैं देखो डायरेक्ट उसके रूट्स के वो ब्रांच तोड़ के लाई हूँ। अभी मैंने तोड़ा है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। क्या हमें ऐसे तोड़ के प्लग करके लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए। इट इज़ अ बैड हैबिट एंड वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स, बट येस वी प्लग फ्रूट्स, राइट? हम फ्रूट्स तो प्लग करते हैं, बट वी नेवर प्लग फ्लावर्स, ओके? एंड वी नेवर प्लग लीव्स। हम फूलों को और पत्तों को ऐसे ही तोड़ के नीचे फेंकना अच्छी बात नहीं होती है। तो दिस प्लांट इज़ ऑफ तुलसी। दिस विच, ये प्लांट किसका है? तुलसी। तुलसी माता, आपकी मम्मा हर रोज़ सुबह और शाम को इनकी पूजा करती होगी।
सबके घर पे ये अवेलेबल होता है, सबके घर पे तुलसी जी का पौधा होता ही है। और वो लोग सुबह और शाम इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। दिया इनके जो पॉट होते हैं, जो गमले होते हैं, उनके पास दिया करते हैं। एंड यू नो दिस तुलसी इज़ वेरी मच यूज़फुल एज अ मेडिसिनल प्लांट एज वेल। जब हमें बहुत सर्दी ज़ुकाम खांसी होती है तब तुलसी वाली चाय पीना या पानी में तुलसी को उबाल के उसका रस मिला के पीना, इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। ये हम पीते हैं जब तुलसी डाल के, तो हमारी सर्दी ज़ुकाम खांसी वो सब चले जाता है। सो दिस इज़ तुलसी। उनके कैन यू सी द लीव्स, दे आर सो स्मॉल, छोटे 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 हैं। और हम तुलसी के पत्तों को तोड़ के ऐसे ही खा सकते हैं एज इट इज़, रॉ के रॉ। कच्चा है तो ये तोड़ा और मैंने खा लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। नाउ सेकेंड प्लांट इज, सी व्हाट इज़ दिस, पानी पूरी स्पेशल इट इज़, राइट, इट इज़ पुदीना। पुदीने का ये जो है ना, ये पत्ते, ये पुदीने के पत्ते हैं। हम लोग जब मम्मी पानी पूरी बनाती है तो पुदीने की चटनी होती है ना, पानी में पुदीना डाला होता है, पुदीने वाला पानी। सो दिस पुदीना इज़ ऑल्सो हैज़ इट्स बेनिफिट। पुदीना जो है ये भी हम लोग सर्दी ज़ुकाम, तुलसी और पुदीना ये दोनों चीज़ें हम लोग सर्दी ज़ुकाम खांसी कुछ भी हमें हुआ हो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के चाय में डालेंगे तो हमारी सर्दी खांसी चली जाएगी। ओके, नाउ लेट अस सी one different medicinal plant. This medicinal plant is known as अडूसी और अडूसा। नॉर्मल लैंग्वेज में अडूसी और अडूसा कहते हैं। एंड यू नो ये जो मेडिसिनल प्लांट है ये भी हमें कोल्ड एंड कफ में ही काम आता है। व्हाट वी नीड टू डू, इसे हम ऐसे तोड़ के कच्चा नहीं खा सकते। वी नीड टू सोक द लीव्स। हमें इस लीव के पत्ते जो है, ये पत्तों को हमें रात भर भिगो के रखना है और सुबह वो जो पानी है वो पानी में ये पत्तों का जो रस है वो निकाल के वो पानी को पीना है, थोड़ा सा गर्म करके, वार्म करके। सो नाउ दिस अडूसा इज़ ऑल्सो मेडिसिनल प्लांट। सी मैंने आपको 3 मेडिसिनल प्लांट बताया, अडूसी, देन तुलसी एंड द पुदीना। कैन यू सी, तीनों अलग है, इसका लीव का स्ट्रक्चर, इसका कलर एंड द शेप, कैन यू सी तीनों अलग है। ओके, now let us see one tree, it is a tree and the leaves, see, can you see कितने लंबे हैं इसके leaves। so can you tell me what is this, क्या किसी को पता है इसका कि ये किस पेड़ के पत्ते हैं। देखो, और एकदम कड़क है, एकदम सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है, they are not soft। so these leaves are of bamboo tree। bamboo tree पता है ना, जिसके हम लोग को बैम्बू, लंबे लंबे बैम्बू होते हैं, उसकी हम लोग खिलौने भी बनते हैं उसके, फिर फर्नीचर बनाने, बहुत सारी चीज़ों में बैम्बू ट्री काम आता है। सो दीज लीव्स आर ऑफ बैम्बू ट्री। नाउ लेट अस सी वन अनदर लीव्स। दीज लीव्स, सी इट इज़ इट लुक लाइक कि मैंगो ट्री के पत्ते हैं ये, नहीं, बट इट इज़ नॉट द लीव्स ऑफ मैंगो ट्री। दीज लीव्स आर ऑफ आसोपालव ट्री। आसोपालव जो ट्री है, ये ट्री के जो पत्ते होते हैं वो हम लोग इंडिया में स्पेशली जब हम लोग तोरण लगाते हैं या जब घर में पूजा हो तो जो नारियल होता है ना, कोकोनट, वो कोकोनट के आसपास रखने के लिए ये आसोपालव ट्री के पत्ते हम लोग यूज़ करते हैं। कभी भी कोई भी शुभ काम हो, व्हेन वी आर गोइंग टू डू एनी auspicious work or puja, anything at our home, at that time we use these leaves for making torans, different kind of torans। okay, रंगोली बनाने के लिए भी हम लोग आसोपालव के लीव्स का यूज़ करते हैं। now let us see some fruit plants। फ्रूट के जो ट्री होते हैं उनके बारे में, उनके लीव्स देखते हैं। see, can you see how big, and these are also not soft, ये भी soft नहीं है। so these leaves are of जामुन tree। जामुन tree black color fruit, हाँ, it black color में black नहीं होता है, it is of what we say डार्क जामुनी कलर, बैंगनी कलर के इसके जो होते हैं। so this are the leaves of जामुन trees। and see these leaves are of which tree, these leaves are of चिकू tree। चिकू, वी हैव ना चिकू, फ्रूट खाते हैं ना हम लोग, चिकू मिल्क शेक एंड
ऐसे। सो कैन यू सी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो दैट मैंने ये पूरा ही आई हैव टेकन आउट। अभी देखो दीज लीव्स ये भी चीकू के हैं एंड दीज आर ऑल्सो ऑफ चीकू, ये दोनों चीकू के हैं। बट देखो ये सब डार्क है एंड ये और एक ये जो है वो लाइट कलर है। अभी ऐसा क्यों? हाँ, वाई दिस इज ऑफ लाइट कलर एंड दिस इज डार्क? I am asking you a question that why these color they are of different color, why the leaves of the same tree has different color. If you know and if you find it out, please let me know by commenting below in the comment box, and if not, I am surely going to say it. Okay, so these leaves are of chiku tree. Now these are the leaves of the king of the fruit. Which is the king of the fruit? फ्रूट का किंग कौन है? जो सब फलों का राजा है वो है मैंगो। सो दीज लीव्स आर ऑफ मैंगो ट्री। कितने प्यारे हैं, कैन यू सी? एंड सी दिस लीव्स मैंगो ट्री और ये आसव पालव। देखो ये दोनों है ना थोड़े से सिमिलर है, लेकिन फ़र्क क्या है? मैंगो ट्री के जो एज होती है बॉर्डर वो प्लेन है और यहाँ की देखो ये कर्ल है। ये दो डिफरेंस है इसमें, अदरवाइज दे लुक लाइक सिमिलर। सो दीज आर द लीव्स ऑफ mango tree. Now which is this? These leaves are of guava tree. guava पेरू बोलते हैं, जमरुक बोलते हैं। सो दिस guava ट्री के ये लीव्स है और वो देखो कितने घने हैं। हाँ, दे आर सो बिग एंड नियर बाई, एक के ऊपर एक आ रहे हैं एंड दे आर डार्क इन कलर। सो सी दिस guava tree, mango tree, then chiku, then this is the जामुन, है ना? ऑल द फ्रूट ट्री, ऐसा नहीं है कि सब फ्रूट के ट्रीज़ के एक जैसे पत्ते हैं या सब फ्लावर ट्रीज़ के एक जैसे पत्ते हैं या सब मेडिसिनल के एक है, नहीं। ऑल ईच एंड एवरी प्लांट एंड ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट शेप, कलर एंड देयर टेक्सचर, वो एक जैसे नहीं है। 8 से 9 अलग अलग पेड़ों के बारे में पढ़ा और 3 छोटे मेडिसिनल पौधों के बारे में भी पढ़ा। अब पेड़ और पौधे ये दो चीज़ क्यों है, ये हम हमारे नेक्स्ट यानी जब आप अपग्रेड अब 4th में आओगे तब आपको वो पढ़ना है, अभी नहीं। अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको पत्तों के बारे में और जानना है तो आप अपने घरों के आसपास जो पेड़ और पौधे हैं उनके पत्ते लेके आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते कि ये, अगर आपको नहीं पता है कि ये इस पेड़ का नाम क्या है, तो वो पत्ता लेके आप अपने मम्मी पापा को बता सकते हो। लेकिन ये स्टूडेंट्स, दिस टाइम इज़ नॉट टाइम टू गो आउट एंड सर्च फॉर द लीव्स। ये सही टाइम नहीं है। दिस टाइम यू नीड टू स्टे होम एंड स्टे ब्लेस्ड। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो घर बैठे पेड़ पौधों के बारे में पढ़ सके। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।